Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is stroboscope and FFT analyzer. In previous lecture, we see introduction to velocity pickup and acceleromotor. The learning outcome of today's lecture are students are able to know the basic of FFT analyzer and stroboscope. The various program outcomes that we achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO. Now what is meant by stroboscope? So this is a stroboscope which is used for measuring the speed of rotating element. This is a 2D diagram of the stroboscope. Stroboscope क्या होता है? Is a device which can measure the frequency of vibration or speed of rotation of object under measurement. मतलब जिसकी frequency of vibration measure करना है या फिर speed of rotation measure करना है, इस कंडीशन में आप किसका यूज करते हो? स्ट्रोबोस्कोप का. It has long been used for rotating machinery and low frequency vibration in laboratories and industrial lines. Okay. By the use of this stroboscope or this 2D diagram of the stroboscope, we can measure the frequency or speed of rotating element. The main components of stroboscope are high intensity lamp. तो ये क्या है? This is called as a high intensity lamp. और this is flashing light और this is a high intensity lamp called as a strobo. इसी को क्या बोलते हैं? Strobe. And an electrical circuit to adjust or vary the frequency of the flashing light. अभी यहाँ पे ये टर्म बहुत ज़्यादा जरूरी है कि frequency of flashing the lamp मतलब क्या होता है. Frequency मतलब क्या होगा? इसका स्पीड. ओके. फ्लैशिंग लाइट मतलब कितने बार ये लाइट चालू बंद हो रहा है, उसी को ही क्या बोलेंगे आप? फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लैशिंग द लैम्प. When stroboscope flashing frequency is synchronized with the vibrating element of machine, मतलब आप क्या करेंगे? जब इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी, सपोज मैं बोल रहा हूँ इसकी फ्रीक्वेंसी 100 है, सिंक्रोनाइज मतलब मैच करना विद द वाइब्रेटिंग एलिमेंट ऑफ द मशीन और स्ट्रक्चर. द वाइब्रेटिंग कंपोनेंट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी. इट इज कॉल्ड एज अ स्टॉप मोशन इफेक्ट. तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दिस इज अ डिस्क. डिस्क पे क्या किया है मैंने? एक पॉइंट यहाँ पे मार्क किया और इसको क्या कर रहा हूँ मैं? रोटेट कर रहा हूँ. और विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रोबोस्कोप आई विल फ्लैश द लाइट ओके ऑन दिस रोटेटिंग डिस्क. देन व्हाट हैपेंस? At certain point you are getting that this point will be stationary, though also it will be rotating. Why? Because आपने देखा होगा, आप ट्रेन में सफर करते हो, दोनों भी आप राम और श्याम एक ट्रेन में, दो ट्रेन में सफर कर रहे हैं और दोनों भी एक ही स्पीड में जा रही हैं. तो राम को जो श्याम है वो क्या लगेगा? स्टेशनरी लगेगा. Why? Because the speed of both the train are equal. Like that here also. सपोज मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लैशिंग लाइट मतलब क्या कर रहा हूँ मैं? सेम कर रहा हूँ एज पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रोटेटिंग डिस्क. देन व्हाट हैपेंस? ये जो मार्क आपको यहाँ पे डार्क दिख रहा है, आफ्टर सम टाइम द ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ स्टेशनरी. मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी सेम हो गई किसके साथ? फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लैशिंग लाइट ऑफ द स्ट्रोबोस्कोप. तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ स्टॉप मोशन पॉइंट. ओके. तो यहाँ पे जो स्पीड रहेंगी स्ट्रोबोस्कोप की, okay, that is the calibrated or that frequency is the calibrated in terms of the speed of the rotating disc. Now frequency of flashing light of stroboscope is calibrated in terms of the speed of rotating object. मतलब ये frequency आप किससे calibrate करते हो? Speed of the rotating object. Now in the next slide with the help of video again we clear this how this stop motion effect will be occur in the rotating disc by seeing the video from the YouTube. Now we see here stroboscope and this is a rotating disc. तो अभी क्या होगा? दिस रोटेटिंग डिस्क पे ये क्या है? एक पॉइंट है. ओके. तो ये मार्क किया है मैंने. ये स्टेशनरी कब होगा? देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रोटेटिंग डिस्क आर इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्ट्रोबोस्कोप. देन वी आर गेटिंग हियर द स्टेशनरी पॉइंट. अभी यहाँ पे क्या है? दो मार्क दिख रहे हैं. ओके.
मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फ्लैशिंग लाइट इज अ डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रोटेटिंग डिस्क। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी आपको सिंगल मार्क दिख रहा है जो रोटेट हो रहा है, तो आपको अभी फाइन ट्यूनिंग करके इसको क्या लेना है, स्टेशनरी कंडीशन में जब तक नहीं आता है आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, जैसे इफेक्ट गिरेगा कि ये डिस्क स्टॉप हो गई है, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ स्टॉप मोशन इफेक्ट। So that is all about the stroboscope. Now we see the FFT analyzer, that is fast Fourier transform. Now this is the block diagram of FFT spectrum analyzer, that is fast Fourier transform spectrum analyzer. The fast Fourier transform can be used to determine the frequency domain representation spectrum of a time domain signal. मतलब आपको इसको इनपुट कौन से फॉर्मेट में मिलेगा, इन द टाइम डोमेन, और आपको इसमें आउटपुट कौन से फॉर्मेट में मिलेगा, इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन. The signal must be digitized in the time domain and then the FFT algorithm is executed to find out the spectrum. तो ये सिग्नल जो मिल रहा है आपको, ओके, is digitized in the time domain, then the FFT algorithm is executed to find the spectrum. और बाद में क्या किया जाता है, FFT algorithm execute किया जाता है to find out the display और to find out the spectrum. spectrum मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऐसा एक कर्व मिलेगा to find out the frequency और frequency of vibration. Now we see the first, the input signal is first passed through a variable attenuator to provide various measurement ranges. तो जो भी सिग्नल आ रहा है, ओके, उसको सबसे पहले कहाँ से भेजा जाता है, वेरिएबल एटीन्यूएटर टू प्रोवाइड वेरियस मेजरमेंट रेंजेस. जैसे आपने रेडियो देखा है, तो रेडियो को जो सिग्नल मिलता है सैटेलाइट से वो एक फॉर्मेट में रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, उसी फ्रीक्वेंसी को मैच करके या फिर उसी सिग्नल को मैच करके आपको डिफरेंट मेजरमेंट रेंजेस लेना है. सपोज मुझे अभी एफएम का ही सिग्नल मिला तो मैं एफएम ही चलेगा मेरे इसमें रेडियो में, लेकिन आपको क्या मिलेगा यहाँ पे एटीन्यूएटर में, एटीन्यूएटर से क्या कर सकते हो आप, डिफरेंट मेजरमेंट रेंजेस. मतलब आपको एफएम में मिलेगा वेरिएबल, सॉरी एफएम मिलेगा, वहाँ पे आपको रेडियो मिर्ची मिलेगा, और कोई चैनल होंगे रेडियो में वो मिलेगा. लाइक इन द टीवी भी ले लीजिए आप, टीवी में एक ही चैनल चलता है कि आपका, नहीं, आपके चैनल क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, हैविंग डिफरेंट मेजरमेंट रेंजेस. ओके, सपोज 1 2 3 ऐसे 3 चैनल है. ओके, तो एक ही इनपुट सिग्नल को एटीन्यूएटर क्या करता है, 3 डिफरेंट मेजरमेंट में चेंज करता है, ताकि आपको क्या मिले, तीनों भी मेजरमेंट आप सिलेक्ट कर सको. दैट इज द यूज ऑफ अ वेरिएबल एटीन्यूएटर, ओके, इन द एफएफटी एनालाइजर. Then the signal is a low pass filter to remove the undesirable high frequency content which is beyond the frequency range of the sampler circuit and the analog to digital converter. तो उसके बाद क्या किया जाता है, इसको लो पास फिल्टर से भेजा जाता है, ये सिग्नल को, जो ये यहाँ से एटेन्यूएटर से चेंज हो गया है सिग्नल, इसको लो पास फिल्टर से क्यों भेजते हैं, ताकि अगर आपकी सिग्नल फ्रीक्वेंसी रेंज है 1 to 100 के बीच में आपको सभी चैनल मिल रहे हैं, लेकिन आपको अनडिजायरेबल फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, अभी 101 का जो सिग्नल आ रहा है, 102 का जो आ रहा है वो नहीं चाहिए, तो ये लो पास फिल्टर क्या करेगा, उसको रिमूव करेगा, ओके, बियॉन्ड द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द सैम्पलर यूनिट. मतलब ये सैम्पलर यूनिट में क्या है, वो रेंज नहीं रहना चाहिए. ओके, तो उसको क्या कर देगा, ये लो पास फिल्टर रिमूव कर देंगे, और सैम्पलर यूनिट क्या करेगा, उसको एक ऐसे सैंपल फॉर्म में उसको लगा लेंगे. ओके, देन द एनालॉग टू डिजिटल कंट्रोलर, देन ये जो लो पास फिल्टर और सैम्पलर से ये जो सिग्नल ये कहाँ पे जा रहा है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. तो यहाँ पे और देखिए सैम्पलर यूनिट का फंक्शन क्या है, जैसे आपको सिग्नल जो मिल रहे हैं अभी लो पास फिल्टर से, ये क्या रहेंगे, आपके अनइवन रहेंगे, मतलब कभी एक मिलेगा कभी दो मिलेगा, तो ये सैम्पलर क्या करेगा, उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लगा के रखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. दैट इज द यूज ऑफ अ सैम्पलर हियर. एंड फ्रॉम द सैम्पलर द सिग्नल इज गोज टू द एडीसी, दैट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, फॉर मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल. The FFT analyzer accomplishes the same thing that the bank
filters analyzer does, but without the need of many bank pass filter. Instead, the FFT analyzer uses a digital signal processing to implement the equivalent of many individual filters. Thus, when considering the operation of FFT analyzer, it is appropriate to think the term of bank of parallel filter is filtering a portion of a frequency spectrum. इसको अभी देखते हैं. तो एनालॉग टू डिजिटल कंट्रोल क्या करेगा, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा. देन इट विल गोज टू द माइक्रो प्रोसेसर, जिसको क्या करेगा, वो सिग्नल को प्रोसेस करेगा और फाइनली यू आर गेटिंग द डिस्प्ले. तो डिस्प्ले में क्या मिलेगा आपको, ऐसा कर्व मिलेगा. ओके, तो ये कर्व से क्या पता चलेगा आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिग्नल. In this simple way, we can measure the frequency of vibration with the help of the FFT analyzer. Now, advantages of FFT analyzer. It is measure all frequency components at the same time. The magnitude is a real quantity and represent the total signal amplitude in each frequency bin independent of phase. Application of FFT analyzer to measure the transfer function of mechanical system. मतलब ट्रांसफर फंक्शन की जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसको मेजर करने के लिए FFT एनालाइजर यूज होता है. इट फॉरेंसिक लेबोरेटरी फॉर मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट एट विच a material will absorb all in the infrared rays. The unit outcome achieved in today's lecture are: select the relevant instrument for vibration measurement of given job with justification. Today we see introduction to stroboscope and FFT analyzer. The various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO2. Important question asked in MSBT exam are: explain the stroboscope with net sketch. Second, describe FFT analyzer. In next lecture, we see types of strain gauges. Thanks. For any query, contact to this number. And the animation that I am showing in this video for the stroboscope is taken from the YouTube video. All the credit for that animation goes to that person, those who are describing the working of the stroboscope there.